Hello and welcome to the ICICI YouTube channel. My name is Miran. Today I am going to discuss on the most important article from today's The Hindu newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. SEBI to unveil bond ETFs to boost retail participation. This is the article. Let's go through the PYQ lens. Why we picked up the importance of the article, because in the article there are two important keywords are mentioned. One is bond ETF, bond exchange traded fund, and derivatives on corporate bond indices. These are the two important keyword mentioned. Let's go through the PYQ. Question number 1. This question was asked in 2025 prelims, and at the same year, question number 8, it was also asked in 2025 prelims. What are the common theme? Bonds, hedge fund, stocks, venture capital, investment fund. Here, regulatory bodies, stock market, these all are the important theme. It means UPSC, in UPSC radar, there are certain important keywords which are already listed. And now, in this time, SEBI came into news due to its bond market reforms. Let's go to the key proposal proposed by the SEBI. Now, SEBI ने क्या propose किया ना, development of the bond ETF to increase retail participation in the bond market. Introduction of the corporate bond indices derivatives for hedging and better risk management. So these are the context from today's The Hindu newspaper. Next, go to the important concept कि what is bond ETF? What is bond ETF? Bond exchange traded fund. देखिए यहाँ पे keywords है. What is the exchange traded fund? It means exchange means it must be listed on stock exchange, right? It must be listed on stock exchange. Let's see the bond ETF. Bond ETF are the basket of the fixed securities, fixed income securities that traded on the stock exchange. You have to remember this line. In case अगर in future UPSC पूछेगा what is the bond ETF, अगर definition पूछ लिया तो you have to remember these lines, that these are all are the fixed income securities that traded on stock exchange. They invest in, अब कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड PSU bond. What is the features? Features means it combines the mutual fund and stocks. Mutual fund plus stocks. It combines the both characteristics of the mutual fund and stock. Mutual fund means it diversify the portfolio. Diversified portfolio, and stocks means traded throughout the day. अब ये वाला पॉइंट मैं बाद में आ रहा हूँ, तो पहले एक चीज और देख लेते हैं. व्हाट इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स? व्हाट इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स बिहाइंड द बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? अगर मान लो कोई इन्वेस्टर ये बॉन्ड ETF खरीदना चाहता है या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहता है, तो उसके बारे में क्या क्या फैक्टर हो सकता है ना. फर्स्ट इज RBI रेपो रेट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट. अब ये इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस इटसेल्फ द इनवर्स रिलेशन विथ इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा. These all are the important points. Now come to the returns. What is the return? अगर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट क्यों करेगा? इंटरेस्ट रेट कम फ्रॉम द बॉन्ड्स. अगर मैं कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा. कैपिटल एप्रिसिएशन ड्यू टू बॉन्ड प्राइस चेंजेस. नाउ कमिंग टू द एडवांटेज. What are the advantage being the bond ETF? Now this is the safe and secure, diversification of the risk, high liquidity, lower risk than equities, regular income and lower expense ratio. What are the some risks? The interest rate risk. This is the important, क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मार्केट में, RBI ने बढ़ा दिया, तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, जो इन्वेस्टर लोगों के लिए मतलब
आसान नहीं है ये लॉस होगा। जो सिंपल भाषा में है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, जो इन्वेस्टर लोग हैं तो उन लोग लॉस फेस कर सकते हैं। देन लिक्विडिटी रिस्क, सम ऑफ द बॉन्ड ETF आर नॉट ट्रेडेड इन लार्ज वॉल्यूम, सो लिक्विडिटी रिस्क एक हो सकता है। क्रेडिट एंड डिफॉल्ट रिस्क, ट्रैकिंग एरर एंड नो गारंटेड प्रिंसिपल रीपेमेंट। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि नो मैच्योरिटी डेट, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। जो अदर्स जो बॉन्ड होता है जहाँ पे एक मैच्योरिटी होता है, डेट होता है, यहाँ पे नो मैच्योरिटी डेट, इसीलिए नो गारंटेड प्रिंसिपल रीपेमेंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट concept, that is the corporate bond index derivatives. What does it mean by derivatives? Derivatives means whose values derives from a underlying asset, that is called derivative. Common types क्या क्या है ना? फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, दिस ऑल आर द टाइप्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स की ये सारी टाइप्स होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है ना? हेज रिस्क, स्पेकुलेट ऑन इंटरेस्ट रेट एंड गेन पर्पस, एक्सपोजर विदाउट डायरेक्टली बाइंग बॉन्ड्स। इसका जो मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स का यही है ना, गेन एक्सपोजर विदाउट बाइंग द एक्चुअल बॉन्ड। अब ये काम क्या करते हैं? काम किस तरह से करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर है और मल्टीपल कंपनीज भी यहाँ पर, ठीक है? यह इन्वेस्टर्स, यह कंपनीज। इन्वेस्टर्स कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, बदले में क्या करेगा? ये इन लोगों को इंटरेस्ट रेट पेमेंट करेगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो इंटरेस्ट रेट ये लोग पे करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, लोन गिवन टू द कंपनीज। इन रिटर्न कंपनी पेज इंटरेस्ट रेट। Then next coming to the point, index. What is index? It is a benchmark. It is a benchmark which track the performance of the multiple corporate bonds. एक इंडेक्स होता है जहां पर ये जो बॉन्ड है एक लिस्टेड होता है, यहाँ पे इस तरह से एक लिस्टेड होता है। इसको मान लो एक एक्सेल फाइल है जहां पर सारी बॉन्ड लिस्टेड है और ट्रैक किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस, हर एक बॉन्ड की परफॉर्मेंस। दीज आर द इंडेक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव? इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पहले बोला कि इट इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। इंडिया पे जो इंडेक्स में मान लो कि एक वैल्यू दे रहा हो 1 to 50, सपोज एक वैल्यू 1 to 50। अगर 50 है तो बहुत अच्छा, अगर 1 है तो बहुत ही बुरा। तो एक इंडेक्स यहाँ पर शो हो रहा है, हर कॉर्पोरेट के एक बॉन्ड इंडेक्स की यहाँ पर कितना वैल्यूज आ रहा है, कितना वैल्यूज जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे और एक इन्वेस्टर ग्रुप है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लोग क्या करेगा? ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर वो लोग ध्यान देगा कि इंडेक्स कहाँ तक कहाँ जा रहा है मार्केट पे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अगर देख रहे हैं कि हाँ आउट ऑफ 50 देयर इज सर्टेन पॉइंट 35 40, तो इन लोगों के एक्सपोजर मिलेगा मार्केट में। एक एक्सपोजर क्या मिलेगा कि हाँ अभी मार्केट में जो हेल्थ है, मार्केट का हेल्थ है बहुत ही अच्छा है, विदाउट इन्वेस्टिंग द देयर इन्वेस्टमेंट। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। जो अदर्स जो इन्वेस्टर है, ये इंडेक्स के बेसिस पे वो लोग डिसीजन ले पाएगा कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दैट इज द डेरिवेटिव। अब व्हाई इंडिया नीड्स ए स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट? रिड्यूसेस डिपेंडेंट ऑन बैंक लोन्स, क्योंकि बैंक इतना लोन नहीं दे सकता। क्योंकि मान लो एक कंपनी है जिसको चाहिए 1000 करोड़ का लोन, लेकिन एक बैंक मान लो SBI है या तो पंजाब नेशनल बैंक है, कोई इतना एक साथ 1000 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या है, बहुत से इन्वेस्टर है, ABCD, बहुत से इन्वेस्टर है। तो जो इंडेक्स है, इंडिसेस का बेसिस पे 1000 करोड़ लोन एक कंपनी को दे सकता है। सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग,
improves financial stability, attract domestic and foreign investors, enhances liquidity and price discovery, promotes economic growth through efficient capital allocation. So these all are the important facts and figures why India needs a stronger corporate bond market. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों. तो आई होप आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि ये जो बॉन्ड, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सेबी, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि देखिए हेज फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ. तो इसीलिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था. तो मैंने आज क्या पढ़ा है, जो आप लोगों ने क्या सीखा, द फर्स्ट इज बॉन्ड ईटीएफ. फर्स्ट इज बॉन्ड ईटीएफ एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ना डेरिवेटिव ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस, corporate bond, and why India need. So these all are the important concept. अगर ये जो कंटेंट है आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोग से शेयर कर दीजिए. और यहाँ पर एक एमसीक्यू भी है, सैंपल एक एमसीक्यू. ये एमसीक्यू आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब दीजिए. कमेंट बॉक्स में बोलिए इसका आंसर क्या होगा इस एमसीक्यू की. ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर ये हमारे इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और ये कंटेंट को देखने के लिए. थैंक यू सो मच.